Hello guys, welcome to my channel Prasad Joshi Astro Universe. Today we are going to talk about the combined influence of Saturn and Rahu on the two signs of our horoscope, which is Aries and Leo for the year 2022 and 2023. Now before starting, let me say that this video has been made in two languages, English and Hindi, and all those people who want to see this video in Hindi can click on the timestamp and they can watch this video in the Hindi language. So we know that Rahu is going to transition into Aries sign in March 2022 and is going to stay there till November 23. Saturn on the other hand will be in the Aquarius sign from April to July 22, and then it is going to remain in this sign from January 23 onwards for the next 2.5 years. So both Rahu and Saturn are going to have their impact on two signs in our horoscope, which is Aries and Leo. So what does Rahu represents? Rahu represents illusions, foreign lands, cheating. It also represents obsessive energy, and people remain obsessed with the particular sign from where Rahu is passing through during that transit. And Saturn on the other hand represents our limitations, restrictions with the places where it is stationed in the horoscope. So when Rahu and Saturn are going to jointly impact the signs Aries and Leo, the end result is going to be a lot of frustration. So let us look at the combined impact of Rahu and Saturn on each of the ascendants. So for Aries ascendant, Saturn and Rahu are going to have a joint impact on the 5th house. So these people are going to feel a lot of strain regarding their love life, and if they have children, regarding them. It's not a very great time to plan for a child or get into a new relationship. So all the attributes that are shown by the 5th house are also going to be hampered. The focus will be on the creative pursuits that the 5th house showcases, speculation, education, and these people will have to work really hard in these areas without getting the desired level of results. Also on the other hand, Saturn is going to impact the first house of these Aries ascendant people. So this is a house of personality and self, and Rahu is also sitting here. So these people are going to remain obsessed towards themselves during this time frame. They are going to see tremendous amount of hard work as far as improving themselves is concerned, and the end result is going to be a lot of frustration. So they need to take this into account. For Taurus ascendant, Saturn Rahu impact is going to be on the 4th house, which indicates home and peace of mind, as well as the 12th house, which is the house of expenditure, losses, or foreign elements. So these people are going to experience a lot of stress at home during this time frame. The stress could also be related to their mother. It is a possibility that they will travel away from home, and as a result will be away from their mother as well as away from the peace that they experience in the 4th house. There is going to be a lot of stress and they are going to experience a lack of peace of mind. Now they will have to put in a lot of efforts in order to generate any kind of an output as far as the home is concerned. So if they are operating any kind of a business from home, that means that the gains are going to be very limited. There is a possibility that they will also gain from real estate, but that would involve a lot of hard work. So they also need to be very cautious as far as their expenditures are concerned. Rahu is going to be stationed in their 12th house for almost 1.5 years, and there is a possibility that they might end up doing a lot of unnecessary expenditure. So they need to watch out for this. Now coming to the Gemini ascendant, so Saturn's joint impact is going to be on the 3rd house for Gemini, which is the house of courage, communication, and short-term travel, and also it is 12th from the 4th house. So what it shows is that these people will go away from their homes on the frequent short-term travels, and as a result they are not going to get any peace of mind and will remain worried about their home. They'll have to put an extra effort if they want to achieve something during this time frame, and since Rahu is going to be in their 11th house, it is also going to have an impact on their gains in general. So they'll have to put in a lot of effort before they can get any kind of gains, and they will have to work very hard and persevere during this time frame.
They also need to watch out for their parents' health if their parents happen to be in the higher age group. Now coming to the Cancer ascendant, Saturn Rahu's joint impact is going to be on the second house, which denotes wealth, family, and the general family environment. So these people are going to experience a lot of stress on the family environment front. They also need to be very careful in the matters of wealth, because this also indicates the money that we have earned through our self efforts. So they will find that saving money is going to be a big issue for them, and they will also have to do a great deal of compromise as far as the family matters are concerned. If they display a lot of patience, only then they'll be able to handle these family related matters, or else things are going to spun out of their control very quickly. So it's a very stressful time for them on the family life and money matters. Also, Rahu is present here in the 10th house. It's going to transition from 10th house for Cancer ascendant, and Saturn is going to look at Rahu through the third aspect. So what this will mean is that these people will try to achieve things very quickly on their work front, but Saturn through his third aspect is going to put a tab on it. So as a result, these people are going to become very frustrated as far as their work life is concerned. On the one hand, they want to achieve things right now because Rahu is stationed there. Saturn is going to limit this so-called achievement thought, and as a result, immense amount of hard work will be required for Cancer ascendant people during this time frame. Now let us come to the Leo ascendant. For Leo ascendant, the Saturn Rahu joint impact is going to be on the first house. So this is a house that represents us, our thought process, our personality. So these Leo ascendant people, they are going to feel that they have got stuck in their daily life. They have got stuck in a kind of a repetitive loop, and they are not going anywhere. So they will have to work a lot on themselves, their thought process, and they'll have to figure out where do they want to go moving forward. And since Saturn is also aspecting it, it will require a lot of efforts before they can figure out the future path or where do they want to go. They will also feel that they want to start their own business during this time frame, but even that would require tremendous amount of clarity and hard work before they can proceed forward. If they focus on creative things during this time frame, then also this transit is going to be beneficial for them. On the other hand, Saturn through his third aspect is going to look at the ninth house where Rahu is positioned. Now, ninth house is the significator of higher learning, guidance, getting a teacher, religion. So all of these things are also going to get hampered during this time frame for Leo ascendant people. Now coming to the Virgo ascendant, Saturn Rahu joint impact is going to be on the 12th house, which is also a house of expenditure and losses. So they need to be very careful against their expenses, otherwise they will see that they are going to incur a lot of losses during this transit. If they frequently travel to foreign lands for their work or for pleasure purpose, they will see that that has become very limited during this time frame, and whenever they are stepping out to a foreign country, that time is going to be very stressful for them. Now 12th house also represents bed pleasures, so they will see that that has also been reduced to a minimum extent. Also, they need to look into the health matters on a proactive level. The second joint impact is going to be on the 8th house. Rahu is going to transition through the 8th house, and Saturn is going to have its third aspect on the 8th house. So all the significators that are represented by the 8th house are going to be impacted. These people need to watch out for the diseases that usually occur below waist. So coming to the Libra ascendant. So for Libra ascendant, the Saturn Rahu joint impact is going to be on the 11th house of gains. So what these people are going to experience is that all the things that are represented by the 11th house, which is elder siblings, your networking and your friend circle, that is going to undergo a massive contraction. They are not going to get any benefit from the things that are denoted by the 11th house. Their gains are also going to get reduced during this time frame, and they'll have to put in immense amount of hard work and display a lot of patience before they can gain
anything substantial. So this time frame is something where they need to curtail their desires, because these desires are not going to fructify during this transition. Also, if some of these Libra ascendant people are planning to start their business, then they may be able to start with it, but they are going to experience a lot of delay in expanding their business, because Rahu is going to transition from their 7th house, which again is a house of partnership and business, and Saturn through his third aspect is going to curtail what Rahu is going to manifest. So therefore there is going to be a lot of frustration for Libra ascendant as far as their business activities are concerned during this time frame. Now for the Scorpion sign, Saturn Rahu joint impact is going to be on the 10th house. So these people are going to get into a lot of stressful time with the things that are showcased by 10th house. So primarily career, their relationship with the bosses is going to be on stake. All the authority people, so 10th house also represent bosses, because this sign is rising on the top of your head when you are born. So people who are sitting at the top of the hierarchy, that is your bosses, are also showcased by the 10th house, and father is also represented by the 10th house. So your relationship with your father is going to have an impact, and your rapport with your boss is also going to be spoiled during this time frame. So it will be good for these people if they mentally prepare for their own business or their own career, rather than relying on their job at this time frame. Since 10th house also represents reputation, if they are not very careful, their reputation may also go for a toss. People may start perceiving them very differently compared to how they were perceiving them earlier. They will have to work very hard as far as their career is concerned. Now coming to the Sagittarius ascendant, Saturn Rahu's joint impact is going to be on the 9th house. Now 9th house denotes long travels or journeys, religion, teachers, and higher learning. So if you are a student and you happen to be a Sagittarius ascendant, this is going to be a very hard time for you, because this house also denotes higher learning. So if you are going for some kind of a higher degree, you may have to put in a lot of efforts and focus before you get your desired result. It also showcases that your relationship with your teachers may also get spoiled during this time frame. Another important joint impact is going to be on the 5th house, which denotes creativity, children, speculation, and entertainment. So you will see that Rahu and Saturn's joint impact on the 5th house is going to curtail all of these significations for the Sagittarius ascendant people. So for Capricorn ascendant, the Saturn Rahu joint impact is going to be on the 8th house. So 8th house is also a house of transformation. So these people are going to see that a major change is going to come in their overall life during this transit. And if these people are receptive towards it, if they are going to change with what the time is trying to change them into, then they will find this transit to be useful. Otherwise, if they resist this change, it is going to be a very stressful time for them. They also need to be very careful regarding their health, as accidents and injuries may also occur during this time frame. As this 8th house is also second house from the 7th house, this also denotes the wealth of the spouse, and it also shows family members, that is in-laws. So the relationship with the in-laws is also going to be stressful during this time frame. These people will have to work really hard for their business benefits, and they should not expect any kind of a relationship benefits during this time frame. The other aspect of Saturn and Rahu is going to be on the 4th house. So if these people are planning any kind of a real estate purchase, they will see that that has also got delayed during this time frame, and they will also have to work very hard on maintaining the harmony in their household. So overall, it is going to be a mixed transit for the Capricorn ascendant, depending on how they accept the change that is going to come into their lives during this transit. Now coming to Aquarius ascendant, Aquarius ascendant people are going to see the joint impact of Saturn and Rahu on their 7th house. Now 7th house is the house of marriage. It also shows your spouse and your business partners. So you will see that during this time frame, all these things are going to have a lot of impact on you, because this house is going to undergo a lot of stress. So you will feel
a lot of stress in your relationship matters related to your spouse as well as your business partner. So this is certainly not a time to get into a fresh relationship if you are single. If you want to start a business during this time frame, it can start, but the problem is you will have to put in immense amount of work, hard work and perseverance before you start to get some kind of a benefit. The other joint impact is going to be on the third sign. So third sign also shows courage and efforts. So Rahu in the third house is usually considered good, but Saturn is going to have its third aspect on this, and as a result these people will also experience a lot of frustrations in the areas that are denoted by the third house. So they'll have to work hard on their communication skills, and they will also have to take some courageous decisions which they are going to delay further and further. Now coming to the final ascendant, which is Pisces ascendant. So Saturn and Rahu's joint impact is going to be on the 6th house. So any huge expectations that they have as far as the 6th house is concerned is going to go for a toss. So 6th house represents your health. It also represents any kind of a dispute and conflict, and it also represents your enemies. So they need to be very, very careful in all these matters during this transit. Otherwise they may get into some kind of a long-term illness, because the Rahu 5th aspect is not going to be very great for them, and they need to watch out for their health. Job, if they are in some kind of a service or a job, then this is going to be a stressful time for them, and they need to avoid any kind of a conflict in their workspace, especially if they are into service. So the whole focus is going to be on the significations of the 6th house, which is health, job or service, and avoiding any kind of a conflict. The other aspect is going to be on the 1st house. So these people are also going to see a lot of frustrations as far as their family life is concerned. The expectations that they have from the family members or the other way around, it's going to be amplified because of the presence of Rahu in it, but Saturn with its third aspect is going to curtail it. So overall a very frustrating time as far as the family environment is also concerned is on cards for Pisces ascendant. So now we have looked at all the 12 ascendant and the joint impact of Saturn and Rahu on these 12 ascendants. So if you have liked this video, please do subscribe to my channel and thank you for watching my video. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल प्रसाद जोशी एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु और शनि के कंबाइंड इफेक्ट की, जो कि दो राशियों पर होने वाला है सन 2022 और 23 में। ये दोनों राशियां हैं एरीज यानी कि मेष और सिंह राशि। तो हम ये देखने वाले हैं कि जब राहु और शनि एक साथ इन दोनों राशियों पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो विभिन्न लग्नों के लिए किस प्रकार का नतीजा मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा दोनों का मिला के रिजल्ट मिलने वाला है ये कब मिलने वाला है। तो अभी आप देखेंगे कि राहु जो है वो अप्रैल 2022 में मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा और वो यहाँ पे नवंबर 2023 तक रहेगा। शनि कुंभ राशि में अप्रैल 2022 में जाएगा, वहां पे वो जून 2022 तक रहेगा। उसके बाद वापस मकर राशि में चला जाएगा बचे हुए पूरे साल के लिए। फिर वो दोबारा से कुंभ राशि में आएगा जनवरी 2023 में और यहाँ पे वो 2.5 साल तक इसी राशि में बना रहेगा। तो अभी क्या होगा कि ये दोनों जो ग्रह हैं, राहु मेष राशि में बैठेगा, शनि इस मेष राशि को यानी कि राहु को तीसरी दृष्टि से देखेगा और ये दोनों सिंह राशि को देखेंगे 5वीं और 7वीं दृष्टि से। तो इन दोनों राशियों पे हम देखेंगे कि राहु और शनि का एक साथ प्रभाव पड़ रहा है। तो अभी राहु क्या है, राहु दिखाता है माया जाल, दिखाता है हर तरह का जो भी व्यक्ति में कंफ्यूजन आता है वो राहु की वजह से आता है। राहु प्रसिद्धि सफलता दिखाता है, टेलीविजन का कारक है, इंटरनेट का कारक है, चीटिंग का कारक है। तो राहु जब भी किसी भी भाव से गुजरता है तो उस भाव में से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, आदमी उन्हीं चीजों के बारे में पूरा समय सोचता रहता है। तो होता क्या है कि जब भी राहु किसी भी भाव से गुजरेगा तो हमें वो चीजें तुरंत चाहिए होंगी और शनि हमें चीजें डिले करके देता है। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा कि जो भी मेष राशि है जहां पर भी पड़ रही होगी आपके हॉरोस्कोप में, जहां जो भी भाव दिखा रही होगी उससे जुड़ी हुई चीजें हमको तुरंत चाहिए होंगी,
लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि हमें वो चीजें तुरंत पाने नहीं देंगी। तो उसकी वजह से व्यक्ति में बहुत ज्यादा कुंठा आ जाएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो इस टाइम फ्रेम के दौरान, जहां पर भी राहु बैठा होगा उस भाव से जुड़ी हुई चीजों से। तो अभी हम एक एक करके सारे लग्नों के लिए देखते हैं कि किस तरीके से इन दोनों प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ेगा 2022 में 3 महीनों के लिए, अप्रैल से जून, और 2023 में जनवरी से लेके नवंबर तक। और अभी हम चालू कर रहे हैं मेष लग्न से। तो मेष लग्न में राहु प्रथम भाव से गुजरेगा और शनि यहाँ 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपनी दृष्टि 5वें भाव पे डालेंगे। शनि जो है वो अपनी 7वीं दृष्टि से 5वें भाव को देखेगा मेष लग्न वालों के लिए, और राहु 5वीं दृष्टि से देखेगा। तो इन लोगों को क्या होगा, इन लोगों के बच्चों से जो भी संबंधित चीजें होंगी उसमें इनको तनाव महसूस होने लग जाएगा। बच्चों से इनके संबंध इस समय बहुत तनावपूर्ण रहेंगे और काफी ज्यादा ये जो है वो स्ट्रेस महसूस करेंगे। अभी अगर ये स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी तरह का क्रिएटिव काम करते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इस समय, बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर इनको किसी भी तरह के अच्छे नतीजे चाहिए हैं इस ट्रांजिट के दौरान। जो दूसरा इनका जो एस्पेक्ट है वो पड़ेगा पहले भाव पे, क्योंकि राहु यहां से गुजर रहा है और शनि तीसरी दृष्टि से यहां देख रहा है। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा समस्या आएगी सोचने विचार करने में, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे इस टाइम फ्रेम में। ये कोई भी चीज अगर खुद से जुड़ी हुई भी बहुत जल्दी करना चाहेंगे तो भी इनको बहुत देर लग जाएगी। विचारों में भी ये देखेंगे कि सोच बहुत ज्यादा रहे हैं और काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है। तो ये जो ट्रांजिट होगा ये इनके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका प्रथम भाव और पहला भाव दोनों पर ही शनि राहु का खराब प्रभाव पड़ रहा है। अभी हम आते हैं वृषभ लग्न पे। वृषभ लग्न में क्या होगा कि राहु और शनि का जो जॉइंट इंपैक्ट है ये उनके चौथे भाव पे पड़ेगा। तो चौथा भाव आपका घर को दिखाता है, आपकी माँ को दिखाता है, आपके पीस ऑफ माइंड को दिखाता है। तो ये सारी चीजों पे ये दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट पड़ेगा उसकी वजह से इन लोगों को घर पे बहुत तनाव महसूस होगा। इनके संबंध अपने घर में अपनी माता से थोड़े बहुत तनाव में चले जाएंगे, और ऐसा भी होगा कि ये लोग कहीं दूर बाहर ट्रैवल करने के लिए निकल जाए, क्योंकि जो दूसरा एस्पेक्ट पड़ रहा है वो 12वें घर पे पड़ रहा है, जो कि फॉरेन लैंड्स को दिखाता है। विदेश यात्रा ये लोग कर सकते हैं इस समय पे, लेकिन वहां पे भी इनको तनाव ही होगा। अगर कोई, जैसे बहुत से लोग हैं जो अपने घर पे बैठ के कोई बिजनेस करते हैं, तो वो भी देखेंगे कि उनके जो गेन्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं इस टाइम फ्रेम के दौरान। और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का धंधा करते हैं तो उसमें भी इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके पहले इनको कुछ भी मुनाफा होगा। तो ये आपके वृषभ लग्न के लिए ट्रांजिट भी कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा। अभी हम लोग आते हैं मिथुन लग्न पे। मिथुन लग्न में क्या होगा, शनि और राहु का जो एक साथ दृष्टि पड़ेगी वो तीसरे भाव पे पड़ेगी। अब तीसरा भाव क्या दिखाता है, तीसरा भाव आपका करेज को दिखाता है, आपके शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स को दिखाता है, और आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं उसको दिखाता है। तो ये सब चीजों पे आपका प्रभाव पड़ेगा इस ट्रांजिट के दौरान। बहुत ही फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम रहेगा इन चीजों से अगर व्यक्ति जुड़ा होगा तो। और तीसरा भाव चौथे से 12वां भाव है, तो वो ये देखेंगे कि उनका जो मानसिक सुख है वो भी इस समय जो है वो उनका छिन जाएगा। और इनको चूंकि तीसरा भाव व्यक्ति के प्रयासों को भी दिखाता है, तो इनको बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे इस टाइम फ्रेम में, और बहुत ज्यादा गेन भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि राहु भी 11वें भाव में बैठा हुआ है और शनि तीसरी दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्यक्ति चाहेगा कि उसको तुरंत लाभ हो जाए जो भी वो चीजें कर रहा है उससे, लेकिन शनि तीसरी दृष्टि इस पे डाल के आपको तुरंत लाभ होने नहीं देगा। तो व्यक्ति मेहनत करता रहेगा, लेकिन उसको जो भी वो डिजायर्ड उसको गेन चाहिए होगा इस टाइम फ्रेम में वो उसको नहीं मिलेगा। अभी हम आते हैं कर्क लग्न पे। अब कर्क लग्न वालों के लिए जो शनि और राहु का एक साथ जो दृष्टि पड़ रही है वो द्वितीय भाव पे पड़ रही है। द्वितीय भाव आपको क्या दिखाता है, द्वितीय भाव आपके परिवार को दिखाता है, जो भी आपने खुद की मेहनत से कमाया हुआ धन है उसको दिखाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि, और वो आपके परिवार को भी दिखाता है, परिवार का जो भी वातावरण रहता है, पारिवारिक वातावरण जिसे हम कहते हैं वो दिखाता है। तो अब क्या होगा कि इनके केस में इनको जो भी पैसा इन्होंने कमाया है वो इनके लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो ये भी देखेंगे कि
उनके परिवार में कुछ तरह का विवाद या तनाव खड़ा हो गया है, तो उसको इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। बहुत तरह के जो है वो इनको गठजोड़ करने पड़ेंगे, कुछ भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस टाइम में, ताकि इनका फैमिली के माहौल में शांति बनी रहे। तो फैमिली लाइफ के लिए भी और पैसे से रिलेटेड भाव के लिए भी ये बहुत मुश्किल समय होने वाला है और इनको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। दूसरी इनकी दृष्टि जो है वो साथ में मिला के पड़ रही है 10वें भाव में, क्योंकि राहु दशम भाव में जा रहा है, शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है। अब होगा क्या, ये अपना जो भी इनका कार्यस्थल है वहां पे चीजें तुरंत फुरुत करना चाहेंगे, इनको चाहिए होगा कि नतीजे इनको तुरंत मिले, लेकिन शनि तीसरी दृष्टि से इनको वो नतीजे पाने देगा नहीं। तो जो भी इनकी कार्य स्थली है उस पर भी इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इनको लाभ होने में भी बहुत समय लगेगा। तो ये लोग वर्क वाले फ्रंट पे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे इस ट्रांजिट के दौरान। अभी आते हैं हम लोग सिंह लग्न पे। तो अगर सिंह लग्न को हम देखें तो यहाँ पे शनि और राहु का जो कंबाइंड प्रभाव है उनके पहले भाव पे ही पड़ रहा है। अब पहला भाव हमारी विचारधारा को दिखाता है, हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। तो इन लोगों को इस टाइम फ्रेम में क्या लगेगा कि वो एक ही जगह पे अटक के रह गए हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, विचारों में भी कहीं उनके कोई कोहेरेंस नहीं रहेगा, वो ना तो कुछ नया सोच पाएंगे ना कुछ नया कर पाएंगे, पूरी तरह से अटका हुआ महसूस करेंगे। तो इनको इस समय में खुद पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टाइम है ये, और इनको ये सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना चाहते हैं। बहुत से लोगों की ये भी इच्छा होगी इस टाइम पे कि वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें, लेकिन वो भी बहुत सोच समझ के इनको चालू करना पड़ेगा अगर करते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और लाभ कुछ ज्यादा मिलने वाला है नहीं इस टाइम फ्रेम के दौरान, खास करके 2023 के अंत तक। ये अगर अपना कुछ क्रिएटिव वाला काम करते हैं तो अलग बात है, क्योंकि उसमें इनको फिर भी सफलता मिलने की थोड़ी बहुत संभावना है। दूसरा जो इनका जो एस्पेक्ट है वो पड़ेगा 9वें भाव पे, क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ है और शनि तीसरी दृष्टि से 9वें भाव को देखेगा। तो जो भी 9वें भाव से रिलेटेड चीजें हैं आपकी, हायर लर्निंग हो गई, अपने गुरु के साथ संबंध हो गए, या आपका जो है कोई डिग्री ले रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, तो वो वाली चीजों में भी इनको बहुत स्टैग्नेशन फील होगा इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि राहु यहाँ पे चाहेगा कि आप वो चीज तुरंत कर लें या उनको ये चीज तुरंत मिल जाए, और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो वो उनको अचीव करने नहीं देगी। तो यहाँ पर भी जो 9वें भाव से भी चीजें दिखाई गई हैं उसमें भी ये लोग अटका अटका सा महसूस करेंगे। अभी हम आते हैं कन्या लग्न पे। कन्या लग्न में क्या होगा कि शनि और राहु का जो एक साथ मिला जुला प्रभाव है वो इनके 12वें भाव पे पड़ेगा। अभी 12वां भाव क्या दिखाता है? 12वां भाव विदेश यात्रा दिखाता है, फॉरेनर्स को दिखाता है या फॉरेन की जमीनें दिखाता है, और आपके खर्चे दिखाता है या आपका नुकसान दिखाता है, जो भी लॉसेस होते हैं वो। तो इन लोगों को बहुत संभल के रहना पड़ेगा, इनको कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है इस टाइम में, क्योंकि अगर ये करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इनको अपने खर्चों पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम फ्रेम में इनके पैसे बहुत घुस सकते हैं। और अगर ये किसी रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं तो भी इनको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर ये लोग बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर ट्रैवल करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, चाहे काम के लिए जा रहे हो अपने या घूमने के लिए जा रहे हो, तो ये देखेंगे कि वो भी बहुत कम हो जाएगी इस टाइम फ्रेम के दौरान। और अगर जाते भी हैं तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति बन जाएगी इनकी विदेश की कंट्रियों में जाके। तो इसके अलावा जो है पैसे से जुड़ी समस्या भी आएगी, क्योंकि अगर आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो नेचुरली आपका पैसा कम हो जाएगा, तो आपको वेल्थ से संबंधित समस्या भी आ सकती है। दूसरा जो इनका ट्रांजिट होगा वो पहले भाव में राहु बैठा हुआ है, शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, तो इनको कमर के नीचे के जो भी तरह की बीमारियां होती हैं वो भी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इनको भी अपनी सेहत का इस ट्रांजिट के दौरान बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम लोग आते हैं तुला लग्न पे। तुला लग्न में क्या है कि शनि और राहु का प्रभाव मिलके 11वें भाव पे पड़ रहा है, तो इनकी 11वें भाव से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें उस पर भयंकर प्रभाव पड़ने वाला है। जो 11वां भाव आपका बड़ा भाई को दिखाता है, आपके मित्रों को दिखाता है, आपकी नेटवर्किंग को दिखाता है, तो इन तीनों चीजों से तो इनको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला इस ट्रांजिट के दौरान। ओवरऑल भी जो इनके गेन्स हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जो दूसरा इफेक्ट है शनि राहु का वो 7वें भाव पे पड़ रहा है। राहु यहाँ बैठा हुआ है, शनि तीसरी दृष्टि से राहु को देख रहा है।
तो होगा क्या कि सातवां भाव आपके बिजनेस को दिखाता है, आपकी पार्टनरशिप को दिखाता है, या आपके पति या पत्नी को दिखाता है। तो उनसे भी इनके संबंधों में बहुत तनाव आएगा इस टाइम फ्रेम के दौरान। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखोगे कि सातवां भाव बिजनेस को दिखा रहा है, 11वां भाव गेन्स को दिखा रहा है। तो धंधे में भी आपके गेन्स में बहुत कमी आएगी इस टाइम फ्रेम के दौरान। आपको बहुत ज्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा जब भी आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, या आप अपने स्पाउस पति या पत्नी के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो उनके साथ भी आपके संबंधों में बहुत तनाव आएगा इस टाइम फ्रेम के दौरान। अभी हम आते हैं वृश्चिक लग्न पे। वृश्चिक लग्न में जो शनि राहु का कंबाइंड इंपैक्ट है वो उनके 10वें भाव पे हो रहा है। अभी 10वां भाव तो आपके कर्म का स्थान है, तो जो करियर रिलेटेड जो भी आपकी चीजें हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कर्म तो उसी में किया जाता है ज्यादातर, तो उसमें इनके जीवन में जो है वो बहुत तनावपूर्ण समय होगा इस टाइम फ्रेम के दौरान। 10वां हाउस जो है वो आपके बॉसेस को भी दिखाता है, क्योंकि ये जो साइन है ये व्यक्ति के बिल्कुल सर के ऊपर होता है जब वो पैदा होता है। तो 10वां भाव जो है आपके बॉसेस को भी दिखाता है, आपके पिताजी को भी दिखाता है। बॉसेस या जो भी आपके कंपनी की हायरार्की में ऊपर बैठे होंगे उनको दिखाता है। तो अगर ये लोग अपने बॉसेस से इस टाइम फ्रेम में ना उलझें तो ही बेटर है, क्योंकि ये अदरवाइज बहुत इनके करियर में मुश्किल आने वाली है इस टाइम फ्रेम के दौरान। और ये आपका परसेप्शन को भी दिखाता है, पब्लिक में जो परसेप्शन होता है आपका, आपकी दूसरे लोगों में आपकी छवि दूसरे लोगों के दिमाग में कैसी है, तो उसमें भी ये जो है समस्या क्रिएट करेगा। दूसरा जो इसका ट्रांजिट होने वाला है वो छठे भाव से होगा। राहु यहीं बैठा हुआ है, शनि तीसरी दृष्टि से इसको देख रहा है। तो छठा भाव आपका जो है आपकी हेल्थ को दिखाता है, तो उसके में भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। दूसरा ये कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है, आपके शत्रु को दिखाता है। तो आप देखोगे कि इस टाइम पे आपके शत्रु एकदम से बलवान हो जाएंगे, तो आपको किसी भी तरह के विवाद से इस टाइम के दौरान बचना है, नहीं तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अभी हम लोग आते हैं धनु लग्न पे। धनु लग्न के लिए शनि राहु का जो मिला जुला प्रभाव है वो इनके 9वें भाव पे होगा। अब 9वां भाव क्या दिखाता है? 9वां भाव धर्म का कारक है, आपके जो भी हायर लर्निंग है उसका कारक है, और आपके टीचर्स को भी दिखाता है। तो ये दिखाएगा कि आप जो है इन चीजों में 9वें भाव की से जुड़ी हुई चीजों में उलझना शुरू हो जाएंगे, है ना। टीचर से झगड़ा हो जाएगा, रिलीजन से रिलेटेड कहीं डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें विवाद हो जाएगा, या आप अगर स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखोगे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको पास होना है या आप जो भी डिग्री लेना चाहते हैं अगर आपको चाहिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, वो पूरा ध्यान आपको अपनी पढ़ाई में लगाना पड़ेगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो। और दूसरा जो इनका प्रभाव है वो 5वें भाव पे पड़ेगा। 5वां भाव आपका सट्टे का कारक है, बच्चों का कारक है, और एजुकेशन का कारक तो है ही, वो तो हमने 9वें भाव से देख ही लिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी इस पे यहाँ। तो जो लोग जैसे सट्टेबाजी में है या शेयर बाजार में खेलते हैं उनको भी इस समय बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो इनके लिए समस्या खड़ी कर देगी। अभी हम लोग आते हैं मकर लग्न पे। मकर लग्न वालों के लिए 8वें भाव में राहु और शनि का कंबाइंड इंपैक्ट पड़ेगा। अब 8वां भाव जो है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि इन लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने की काफी संभावना है। इनके जीवन में जो बदलाव आएगा अगर ये उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तब तो चीजें अच्छी चलेंगी, नहीं तो फिर इनको काफी तनाव महसूस होना शुरू हो जाएगा अपने जीवन में। इनको एक्सीडेंट से भी सावधान रहना चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है कि इनको किसी तरह की सर्जरी करवानी पड़े इस टाइम में। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। 8वां भाव जो है वो 7वें से दूसरा भाव है, तो ये अपने पति या पत्नी के परिवार को भी दिखाता है। तो इनके जो भी इन लॉज हैं उनसे भी इनके संबंध इस समय काफी तनावपूर्ण रहेंगे, और उस पे भी इनको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी उन लोगों से बात करते समय। और अगर ये लोग सोचते हैं कि इनको किसी भी तरह के संबंधों से कोई भी फायदा मिल जाएगा तो वो तो इस ट्रांजिट में होने वाला है नहीं। दूसरा इनका जो कंबाइंड इफेक्ट पड़ेगा वो 4थे भाव पे पड़ेगा, क्योंकि 4थे भाव में राहु बैठा हुआ है, शनि तीसरी दृष्टि से 4थे भाव को देख रहा है। तो
ये लोग अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, तो उसमें इनको डिले हो जाएगा और वो इनको इस ट्रांजिट में खरीदना अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि राहु चौथे भाव में बैठा है, तो वो हो सकता है ये किसी उटपटांग प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ जाएं और अपना पैसा गवा बैठे। वैसे भी शनि की तीसरी दृष्टि ये वो ट्रांजैक्शन को आसानी से होने देगी नहीं, तो ये कुछ खास अच्छा टाइम नहीं कहा जा सकता मकर लग्न वालों के लिए। अभी हम लोग आते हैं कुंभ लग्न पे। कुंभ लग्न में शनि और राहु का प्रभाव 7वें भाव पे पड़ेगा। तो 7वां भाव क्या दिखाता है? पति या पत्नी को दिखाता है, बिजनेस पार्टनर को दिखाता है, या कोई भी तरह का अगर आप धंधा व्यापार करते हैं उसको भी दिखाता है। तो इन सारी चीजों में कुंभ लग्न वालों को बहुत तनाव महसूस होने वाला है। इन लोग अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो शुरू तो हो जाएगा, लेकिन उसके परिणाम तभी आएंगे जब ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और उसमें लगे रहेंगे बिना हार मानते हुए। अगर ये किसी भी तरह का कोई नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, अगर ये लोग सिंगल हैं, तो इन्होंने इस समय टालना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह के किसी उसमें घुसते हैं रिलेशनशिप में, तो भी इनको कुछ खास उससे परिणाम मिलने वाला है नहीं। दूसरा इसका जो एस्पेक्ट होगा वो तीसरे भाव पे पड़ेगा, क्योंकि राहु यहां से गुजरेगा, शनि तीसरी भाव से यहां देखेगा। तो ये देखेंगे कि इनके जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें बहुत समस्या आएगी, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो कम्युनिकेशन में गलत फहमी आएंगी, ये कहेंगे कुछ और लोग समझ कुछ और लेंगे। तीसरा भाव जो है आपके करेज को भी दिखाता है, तो ये लोग काफी मतलब डरे सहमे से रहेंगे, या कोई भी डिसीजन लेने में जो इन्होंने पहले करेज दिखाया है वो नहीं ले पाएंगे। तीसरा जो स्थान है वो शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स भी दिखाता है, तो उसमें भी इनके अड़चने आना शुरू हो जाएंगी इस टाइम फ्रेम के दौरान। अभी हम आते हैं मीन लग्न पे। मीन लग्न में शनि और राहु का प्रभाव मिला के पड़ेगा छठे भाव पे, जो कि स्वास्थ्य को दिखाता है, आपके डिस्प्यूट किसी भी तरह के वाद विवाद को दिखाता है, आपके शत्रुओं को दिखाता है। तो इस टाइम फ्रेम में इनको जो है वो किसी भी तरह के वाद विवाद से बच के रहना है। शत्रु इनके ऊपर हावी होने का प्रयत्न करेंगे, तो अगर मान लीजिए सर्विस में या जॉब करते हैं, वहां पे अगर इनके कोई शत्रु हैं या किसी से बनती नहीं है, तो उनके साथ व्यर्थ वाद विवाद से इनको बचना चाहिए। हेल्थ का इनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय पे, और अगर जॉब करते हैं तो वहां का जो वातावरण है वो बहुत तनावपूर्ण होने वाला है। तो दो चीजों पे फोकस रखना पड़ेगा। एक तो सर्विस करते हैं तो वहां पे किसी से फालतू में उलझे नहीं, और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें इस ट्रांजिट के दौरान। और जो दूसरा जो इनका जो पड़ेगा वो पड़ेगा दूसरे भाव पे, तो परिवार के माहौल में भी जो है वो सुख में कमी आएगी। वेल्थ में भी आप देखोगे तो पैसा कमाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप सारे ट्रांजिट्स को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो अगले 2 साल हैं 2022 और 2023, इसमें बहुत से लोग जो है वो कुंठित रहेंगे उन दो घरों से, जहां पे कि उनके ये दो राशियां पड़ती हैं, मेष और सिंह राशि। क्योंकि ये जो दोनों का इंपैक्ट पड़ेगा शनि और राहु का, तो उनको जिस भी भाव में ये राशियां पड़ रही होंगी उस भाव से रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और परिणाम उनको उतना अच्छा मिलेगा नहीं। तो अगर वो लोग इन चीजों को पहले से समझ लें और काफी धैर्य रखें इस टाइम पे और अपने काम में लगे रहें, तो जब ये गोचर से प्लैनेट्स निकल जाएंगे तो उनको जो भी उनको मनचाहा परिणाम है वो इनको जरूर मिलेगा। तो ये थे आपके 12 लग्नों के परिणाम शनि और राहु के कंबाइंड इफेक्ट के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।